Hello children, I welcome you all in my YouTube channel Anuradha Online Classes. Today I'll take class 7th and chapter number 1, that is nutrition in plants. First part we have done in our earlier class. Now let us come to its second part, that is based on what? Photosynthesis. Now in earlier class I told you about nutrition in plant and its modes. Okay, just now you will read about photosynthesis in detail. Now what is photosynthesis? Actually what is photosynthesis? Photo means what? Literal meaning I have told you. Photo का मतलब क्या होता है? Light, and synthesis मतलब क्या होता है? Making of food. When the plants make their food in the presence of sunlight, in the presence of light, then that is known as, that process is known as what? Photosynthesis, right? Now let us see. Photosynthesis is food making process in plants. Okay, now come to the first one point. The main points I have written over here. You just look after this. Leaves are the food factories. What is the food factory of plants? That is the leaves. Leaves are the food factories of plant. As Q. Why? As they synthesize, that is they are making food. Food making process takes place in it. That is why we call it what? Food factories. Now let us come to the second point. For making food, what is required? Raw materials. If we are making rice, what is required? The rice is required, then water is required, then gas is required. Okay, and one vessel is required जिसमें वो बनेगा. So in same way, plants also need what? Raw materials. If they have to make the food, they need raw materials. Now all raw materials must reach there. सारे raw materials को उसके पास पहुंचना पड़ेगा. Where? In the leaves. Now see, first raw material is water and minerals. Water and minerals are present in where? It is present in the soil. अब soil में plant का कौन सा part रहता है? Roots. तो roots क्या करते हैं? उसको absorb करते हैं. These are present in the soil, are absorbed by roots. उसको root absorb करते हैं and transported to the leaf. और उसमें vessels होते हैं, that I'll tell you further. उसमें वेसल्स होते हैं. कुछ वेसल्स होते हैं जो चीजों को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, लाइक वाटर, मिनरल्स, वो लीव्स को पहुंचाते हैं. फिर कुछ वेसल्स होते हैं जो लीव्स से जब फूड बन जाता है तो खाना पूरे प्लांट के हर एक पार्ट्स तक पहुंचाते हैं. ओके, नाउ लेट अस कम टू दैट. आई विल टेल यू लेटर. Roots and transported to the leaves. Now let's come to the second raw material. Second raw material is what? Carbon dioxide. अब carbon dioxide कहाँ से मिलेगा? From air. Carbon dioxide from air is taken through the tiny pores present on leaves. Now अब ये carbon dioxide कैसे plants के अंदर जाएगा? Leaves को कैसे मिलेगा? Leaves are having pores, small pores. See, this is a leaf. So leaf is having what? Small tiny pores all over the. Okay, so that tiny pores are known as what? Stomata. This is known as stomata. About stomata I'll tell you after this. You just know कि tiny pores जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Tiny pores are known as stomata that are present on the leaf. और ये लीफ में प्रेजेंट होते हैं. इसके लिए ये क्या करते हैं? लीव्स जस्ट एब्सॉर्ब ऑल दैट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, राइट? देन आफ्टर सी व्हाट इज हैपनिंग. थर्ड इज लीव्स हैव ग्रीन कलर पिगमेंट. अब बिना ग्रीन कलर पिगमेंट मीन्स बिना क्लोरोफिल के प्लांट्स फूड नहीं प्रिपेयर कर सकता. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, नाउ लेट्स कम टू अब क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल हेल्प द प्लांट्स. इट हेल्प्स द प्लांट और लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. देखो अब हमें क्या क्या मिल गया? वाटर एंड मिनरल मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया. देन आफ्टर व्हाट वी गेट? क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीव्स दैट हेल्प्स टू कैप्चर एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. अब सन से उसने सनलाइट ले लिया एंड देन दे प्रिपेयर द फूड. That is known as, that this whole process is known as what? Photosynthesis. Okay children, I'll tell you then about, see children, you know photosynthesis
it is a unique process. It is a unique process. Why we are calling it unique process? Because the solar energy is captured by the leaves and in plants in the form of food. मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण ही फूड प्रिपेयर हो पाता है. प्लांट्स आर मेकिंग फूड, और अगर वो फूड नहीं बनेगा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, देन व्हाट विल हैपन? Then what will happen? We will not get any type of food. प्लांट्स अगर कुछ बनाएंगे नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? एनिमल्स को खाएंगे, बट एनिमल्स ऑल्सो नीड फॉर देम ना. एनिमल्स को क्या चाहिए? एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स, नॉट टू टाइप्स, थ्री टाइप्स. क्या क्या? एक होते हैं हर्बीवोरस जो प्लांट्स को सीधा खाते हैं, एक होते हैं कार्निवोरस जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? उन हर्बीवोरस प्लांट्स के ऊपर, दैट एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. ओके, एंड द अदर कैटेगरी तो हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है. नाउ सी, दैट इज वाई फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बिना कोई फूड नहीं होगा. लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट दिस प्रोसेस. दैट इज वाई वी कॉल इट व्हाट? यूनिक प्रोसेस. नाउ just now we have read about the raw materials. Then after, one more important thing is there, the solar energy. About the solar energy, see, solar energy is captured. हाँ, solar energy capture किया किसने? Leaves ने capture किया, by the leaves. Okay, then after what will happen in the plants? In the form of food. अब इस solar energy को plant ने use किया, food बनाया, और फिर उस energy को, वो जो फूड बना के वो स्टोर किसमें? ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर किया? इन फॉर्म ऑफ फूड. अब प्लांट्स आर स्टोरिंग फूड मे बी इन लीव्स. अगर वो लीव्स में स्टोर करते हैं तो हम उनके लीव्स को खाते हैं. अगर वो फ्रूट में स्टोर करते हैं तो हम उसके फ्रूट को खाते हैं. इफ दे आर स्टोरिंग इन द स्टेम देन वी आर ईटिंग दैट, एंड इफ दे आर स्टोरिंग इन द दैट ब्रांचेस और इन द रूट्स, then we are eating that roots. They all are known as modified parts of the plant or edible plants of the plant, right? Edible parts of the plant. Now see, sun is the ultimate source of energy. You know this? Sun के बिना कोई भी चीज possible नहीं है, as sun gives us heat as well as light energy. Now see how it is important. Sun is the ultimate source of energy for all living organisms, not only for plants, for animals, even for us as well as for microorganism also. Sunlight, sun is very important source. Okay, now let us come to the next. Photosynthesis अभी हमने पढ़ा कि leaves are doing that. Okay, green color plant and its leaves. प्लांट में जो ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एंड देयर ओनली दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस. बट बिसाइड्स लीव्स के अलावा भी फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन प्लांट्स. मतलब कुछ ऐसे ग्रीन प्लांट्स हैं जहाँ पे लीव्स वो काम नहीं करते. इफ यू हैव हर्ड अबाउट डेजर्ट्स, डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं वहां तो वाटर सफिशिएंट उनको नहीं मिल पाता, वाटर की कमी रहती है. फॉर दैट उनका जो लीफ वाला जो पार्ट होता है ना, लीफ होता ही नहीं है, लीफ इज मॉडिफाइड इनटू स्टेम. वो स्टेम में मॉडिफाई हो जाता है. रीजन क्या है? लीफ रहता है तो लीफ में पोर्स होते हैं, और पोर्स होते हैं तो लॉस ऑफ वाटर होता है, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स इज known as what? Transpiration. That takes place in leaves. तो जितने ज्यादा लीव्स होंगे उतना ज्यादा लॉस ऑफ वाटर होगा. बट डेजर्ट में तो वाटर की कमी है, शॉर्टेज है, तो क्या होता है डेजर्ट प्लांट्स में? वो लीव्स जो है स्टेम में मॉडिफाई होके रहते हैं. कैक्टस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल. वो स्टेम ग्रीन कलर का होता है, एंड देयर द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, एंड फोटोसिंथेसिस टुक प्लेस इन दैट पार्ट ऑफ द plant. Okay children, let's come to the next. So children, let's come to here. See, can life exist without photosynthesis? Photosynthesis अगर नहीं होगा तो क्या life exist करेगी? See, why photosynthesis is essential? See, it is food making process. Okay, this you know. When carbon dioxide and water is added in the presence of chlorophyll and what? Sunlight, then it produces, the leaf क्या produce करता है? Glucose, that is food.
ओके, दैट वी आर हैविंग. कुछ पार्ट वो स्टोर कर देता है इन द फॉर्म, इन इट्स लीव्स, इन इट्स फ्रूट्स, इन इट्स सीड्स में भी कई बार स्टोर करता है, उसके रूट्स में स्टोर करता है, स्टेम में स्टोर करता है, और कुछ पार्ट वो यूज कर लेता है. एज वेल एज वो ग्लूकोज के साथ एक और चीज बनती है वहां पे. व्हाट इज दैट? दैट इज ऑक्सीजन. दैट इज द लाइफ सपोर्टिंग गैस. हम लोगों का लाइफ सपोर्टिंग गैस क्या है? दैट इज ऑक्सीजन. सी, तो why this is most essential? Because it produces, in this process only oxygen is produced. एटमॉस्फेयर में तो है, लेकिन वो बैलेंस कौन करता है कि दोबारा से एटमॉस्फेयर में लाने का काम कौन करता है? दैट इज डन बाय द प्लांट्स. दैट इज व्हाई वी रिक्वायर प्लांट्स. ओके, प्लांट्स अगर नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा. लाइक सी, oxygen is essential for survival of all living organism. Is produced during photosynthesis. That is why we are saying that life does not exist without photosynthesis. Life is as we all are present, we all are live, all the living organisms are live because of photosynthesis only. Okay, just now I'll tell you about the chlorophyll and its structure and all. See children, here I made stomata का पूरा figure मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए बनाया है. Look here, this is leaf. Okay, इसमें small pores are there, a very small pores, जो कई बार आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा, लेकिन अगर नहीं अच्छे से नजर आता है, विद द हेल्प ऑफ दैट माइक्रोस्कोप वी कैन सी दिस, या लेंस के थ्रू, मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू भी आपको दिख जाएगा ये. नाउ दिस होल्स मीन्स दिस इज दैट मैग्निफाइड फॉर्म ऑफ द स्टोमेटा. हाउ इट लुक्स लाइक, सी लीफ का एक पार्ट अगर हम लें तो इट लुक्स लाइक दिस. दिस वन और दिस ऑल ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का दिखता है. दिस ऑल ग्रीन कलर पिगमेंट इज व्हाट? क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल के बीच में थोड़ा सा स्पेस देख रहे हो, दैट इज नोन एज स्टोमा, राइट. और स्टोमा के साइड में जो ये हैं, दीज आर द वॉल्स जो उस स्टोमा को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. दैट इज व्हाई वी कॉल इट व्हाट? गार्ड सेल. गार्ड करते हैं, दे आर गार्डिंग द स्टोमा. इट्स ओपनिंग. क्यों? क्योंकि आप इसके नीचे आ जाइए. दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा लुक्स लाइक दिस. अगर उसको हम बिल्कुल मैग्नीफाई करके देखें तो ये जो बीच में आपको होल दिख रहा है, दिस इज स्टोमेटल ओपनिंग. इट ओपन्स एंड क्लोजेस, इट ओपन्स एंड क्लोजेस. जब ओपन होता है तो एयर इन होती है, उसके बाद वो क्लोज हो जाता है. सो इसका ये गैपिंग जो है इट वेरीज, राइट. इस ओपनिंग को कवर जो करता है दैट इज व्हाट? गार्ड सेल्स. ओके, इस गार्ड सेल में न्यूक्लियस एज सेल के कुछ पार्ट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियस. हर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इस सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. दिस इज प्रेजेंट ओवर हियर. इसके बाद आप देखते हो इसमें थोड़े एक आध जगह होल्स होते हैं, दैट इज नोन एज सेप वैक्यूल. इसको हम क्या बोलते हैं? सेप वैक्यूल. ओके, एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज स्टोमेटल ओपनिंग. यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू ही वो प्लांट्स जो है दे ब्रीथ. ओके, लुक चिल्ड्रन, हियर I have made this the whole picture how the plant is doing photosynthesis. Now see, this is a plant, these are roots. Roots ने क्या किया? Water and minerals they have taken. ये सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया किसके पास? ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ. अब लीफ में जो ये छोटे छोटे होल्स हैं, इसने ट्रैप किया एयर से व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड. एंड सन से उसने क्या लिया? सनलाइट लिया. Why? Because here chlorophyll is present. ठीक है, इसने ये सारी चीजें ले ली. Then it make their food. Means carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll form what? Carbohydrate. That is what? That is food. That I told you about the starch. This is a form of starch.
एंड व्हाट ऑक्सीजन. सो हमें ये दोनों चीजें क्या मिली, इन रिटर्न मिली. ओके, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ क्लोरोफिल, सॉरी नॉट क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, इसने जो ये सारा का सारा चीजें फॉर्म किया, तो हमें मिला क्या, सारी चीजें मिक्स करके व्हाट वी गेट, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इट रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर, और कार्बोहाइड्रेट्स को वो क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च दे स्टोर इन द प्लांट्स ओनली. Okay, so during photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves, chlorophyll containing cells of leaves, leaf के cell में chlorophyll present होता है. I told you just now in the that just before this I have shown you one picture. There I told you कि chlorophyll is present in the cells of leaves. The whole picture of that you have seen. तो वो chlorophyll ने क्या किया, in the presence of sunlight, sunlight की presence में this chlorophyll that is present over here uses CO2. इसने CO2 use किया and water use किया from the ground, okay, water minerals to synthesize carbohydrate, और synthesize किया, बनाया उसने carbohydrates बनाया and oxygen release किया, oxygen भी बना इस process में, it is released, okay, oxygen is released. Now carbohydrate get converted. अब carbohydrate जो उसने फॉर्म किया ना, it get converted into starch. वो starch में convert कर देता है plant into starch, presence of starch. अब हमें कैसे पता चलेगा? You have done taste also in class 6 कि this leaf is having starch in it or not. How we can do this? तो presence of starch in the leaves indicate that that plant is carrying out what, photosynthesis. Okay, that iodine test you have done in class 6 also. तो that plant के जो प्रोडक्ट हैं उसके अंदर, जैसे हमने पोटैटो का वो टेस्ट किया हुआ है, पोटैटो को कट करेंगे तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने से वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, या लीफ को भी लेके हम लोगों ने टेस्टिंग की हुई है. दैट मीन्स व्हाट, दैट शोज वेदर दैट प्लांट is having the process of photosynthesis or not. Okay children, in this way we have completed the main topic of the chapter, that is photosynthesis. मिलते हैं अपनी next video में with rest of the chapter. Okay children, till then goodbye. देखते रहिए इस चैनल को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए. अगर आप कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.